In our previous module, we talked about the general characters of the phylum Coelenterate. Today, in this module, we are classifying the phylum Coelenterate further and it will be in the. So we are today talking about the class category, which are the class. These are the diagrams. So you just go through this, so you can recall what my last lecture. Uh, you see here Hydra, then sea anemone, Gorgonia, Physalia, Madrepora, Astrea. These are the coral. Sea pen, Penatula. So what the characters? Lenders are aquatic, solitary or colonial. They can be freshwater, marine, sedentary or free living, free swimming. Symmetry can be radial, biradial, and the body organ tissue, cell tissue grade organization. They are diploplastic. But now net first time you find now net exoskeleton, perisarc or calcareous, chitinous or calcareous. Then we talked about the diploplastic. They are then there are two cell layers: outer epidermis, inner gastrodermis, and gelatinous mesoglea in between. Two types of individual occur: polyps and free-swimming medulla. Mouth of polyps and bell-marine medusa often encircled by short and slender tentacles. Coelom, respiratory, circulatory systems are not there. Muscle systems, we have talked about that longitudinal muscles, and these are actually the epithelial muscles, that endothelial muscle cells. That arrangement make this longitudinal circular muscle fiber form. A single internal cavity lined with the gastroderm called gastrovascular cavity or cylindron. Fianus के बारे में हमने देखा था, एब्डोमेन इज नॉट देयर, डाइजेस्ट इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर बोथ, है ना. स्टिंगिंग निमेटोसिस्ट होता है, नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव होती है, then sensory cells भी होते हैं, ocelli is there, balancing or statosis is there, asexual reproduction by body and fission, sexual form monoecious dioecious. इनका जो लार्वा होता है वो प्लैनुला लार्वा होता है. And life history usually regular alternate between the asexual polyps and medullary stage. So we all talked about this, and we also gone through these diagrams. Okay, so today further, this is the longitudinal muscles here. देखो, है ना? Yes, Guruji. Just 1 second. Okay, so these are the diagrams. So now today we are talking about these three main class. Coelentrates is further classified into three class. These are hydrozoa, scyphozoa, and anthozoa. Another name is actinozoa. Hydrozoa, scyphozoa, anthozoa. Sometime in 1 mark objective you can be asked which are the classes of coelentrates. Just give the name. So let's talk about the hydrozoa. When you are studying about hydrozoa, just keep your mind that you have studied already about the animal type Hydra. So you keep Hydra and match the all character with the Hydra, you will find description very easy. Another animal, Obelian Physalia is there, and there are many more examples are there. So Hydra, Obelian Physalia belong to hydrozoa. Greek word, it is derived from the Greek word Hydra means water and zoom means the zoon stands for the animal. So they are water animal. Hydrozoa means water animal. So where do you find Hydra? Water. So Hydra is okay. So they can be freshwater or marine. Certain species are marine, or certain animals of this class are marine. They are solitary or colonial. So they can be found in solitary or colony. They make colony. Only polyps or both asexual polyps and sexual medusa present. Now, in Hydra, you don't find any medusa-like structure. Hydra itself is a polyps-like structure. Hydra में क्या था? एक सिंपल हाइड्रा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं, और टेंटिकल्स क्या करते हैं, प्रे को लेके आते हैं और कहाँ बीच में पूरा जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें पूरा
फूड अंदर एंटर होता है। तो यहाँ पे जो ये पूरा फॉर्म है, इट्स एंटायरली पॉलिप्स. Hydra itself is like a polyps, but it does not produce any medusa. Whereas if you see the Obelia, in case of Obelia, we talked about the Obelia. So Obelia has both polyps and medusa-like structure. This Obelia, yeah, this is the Obelia colony. This is the Obelia colony. You see here, this structure is a feeding or part. It's like a hydra. ये ओबेलिया का ये पॉलिप्स है, इट्स डायमॉर्फिक यू कैन से. ये जो पार्ट है ये है फीडिंग पार्ट कॉलोनी का. तो ये है हाइड्रा के जैसे काम करता है. तो ये क्या करता है, पूरा खाने का इंतजाम करता है. सो दिस इज द फॉल. ये पॉलिप्स है, ये पूरे टेंटिकल से खाना खाता है और यह डाइजेस्ट होता है. तो ये पॉलिप्स है. अच्छा, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि यहाँ पे कहीं पे ये जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोनगोनियम, सॉरी ब्लास्ट, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं. अब ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर से क्या होता है, ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर जनरेट होते हैं इस तरह के मेड्यूसा बर्ड्स. फिर मेड्यूसा बर्ड्स बड़े हो जाते हैं, फिर वहां से डिटेच हो जाते हैं, एंड दे आर मेल एंड फीमेल काइंड. सो देखो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ से ये मेड्यूसा बर्ड्स में से निकल के आए. ठीक है, तो ये ब्लास्टोस्टाइल जो था उसमें से पूरे निकल के ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर जनरेट हुए मेल और फीमेल टाइप के मेड्यूसा बर्ड. तो ये मेल मेड्यूसा है, ये फीमेल मेड्यूसा है. ये मेल मेड्यूसा ये एक अपने आप में एक फॉर्म है, फ्री लिविंग फॉर्म जैसा हो गया. तो इसने क्या जनरेट किया, स्पर्म. इसने क्या जनरेट किया, ओवम. ये देखो इनका कितना व्हाट यू कॉल एस्ट्रोनाइजिंग लाइफ है. ये एक ही एनिमल है, हम कहते हैं ये ओबेलिया कॉलोनी है या ओबेलिया एनिमल है, ऐसे एनिमल टाइप पढ़ते हैं. अब यहाँ पे ये लुक लाइक हाइड्रा, ये इसका काम है हाइड्रा. और ये क्या कर रहा है रिप्रोडक्शन के लिए. यहाँ पे कुछ रिप्रोडक्टिव बर्ड जनरेट हुए, वो अलग हुए, वो बाहर निकले, वहां पे चला गया. तो ये रिप्रोडक्टिव बर्ड कन्वर्ट हो गया एक एज अ इंडिविजुअल सेपरेट मेल इंडिविजुअल जैसा. इट्स कॉल्ड मेल मेड्यूसा. ये होता है फीमेल मेड्यूसा. अब मेल मेड्यूसा ने अपने आप में क्या जनरेट किया, स्पर्म. इसने क्या जनरेट किया, ओवम. इन दोनों का फ्यूजन होके क्या हुआ, जायगोट का क्लेवेज जो अलग अलग स्टेजेस गया, लार्वा स्टेज में आया, अल्टीमेटली फिर से वो लार्वा में से सेट हो गया. और वो सेट होने के बाद वो पूरा इस तरह का एज अ ट्री वो पूरा जनरेट करता है स्ट्रक्चर. तो अगेन आपके पास पॉलिप्स है, हाइड्रांथ है, उसके अंदर पॉलिप्स होता है, ब्लास्टोस्टाइल है, वो फिर से पॉलिप्स से मेडो जनरेट करेगा. तो कितना वियर्ड लाइफ है इनका. तो यहाँ पे इन सिंगल एनिमल यू फाइंड बोथ पॉलिप्स एंड मेड्यूसा. तो ये एग्जांपल हुआ कि इन सर्टेन एनिमल्स यू फाइंड ओनली पॉलिप्स, इन सर्टेन बोथ पॉलिप्स एंड मेड्यूसा प्रेजेंट. से फॉर एग्जांपल ओबेलिया में बोथ पॉलिप्स एंड मेड्यूसा स्टेज आर प्रेजेंट इन अ सिंगल एनिमल. Polyps without stomodium, that is called the pharynx-like structure, and septa mesentery. अब मैं इसका डायग्राम आपको बताता हूँ. पॉलिप्स, ये जो पॉलिप्स है ये एक्चुअली दूसरे क्लास में आप इसको पढ़ेंगे. ये है मैट्रीडियम. ठीक है, मैट्रीडियम जो एनिमल है, तो ये इसका जो एंट्रेंस है, ये पूरा जो है, ये जो देखिए आप स्टोमोडियम, इट्स अ फेरिंक्स लाइक ऑर्गन. तो ये एक्चुअली जो पूरा माउथ है, जो माउथ जो यहाँ पे ओपन हो रहा है उसको हम बोलेंगे फेरिंक्स. तो पॉलिप्स ओपन्स इनटू द फेरिंक्स और स्टोमोडियम लाइक ऑर्गन, स्टोमोडियम और फेरिंक्स लाइक ऑर्गन. तो माउथ कहाँ पे ओपन हो रहा है, स्टोमोडियम में. तो यहाँ पे क्या लिखा है आपने, यहाँ पे लिखा है कि पॉलिप्स विदाउट स्टोमोडियम. तो हाइड्रा में ऐसा कोई स्टोमोडियम हमने ड्रॉ नहीं किया था. तो कुछ दूसरे जो क्लासेस आएंगे उसमें क्या होगा, स्टोमोडियम नाम का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगा, हाइड्रा में नहीं था. सेप्टा, पॉलिप्स विदाउट स्टोमोडियम एंड सेप्टा. हाइड्रा की बॉडी में कोई सेप्टा नहीं था, तो यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है. यू सी हियर. अब इनका जो बॉडी वॉल है, बॉडी के स्ट्रक्चर है, ये पूरा इनके जो बॉडीज हैं. अच्छा, वो जब सेप्टा मेजेंट्री क्या आएगा वो मैं जो उस क्लास के जो एनिमल आएंगे तब समझाऊंगा. अभी के लिए इसका याद रख लो कि पॉलिप्स विदाउट स्टोमोडियम एंड विदाउट सेप्टा. तो पॉलिप्स जो स्टेज है, जैसे कि हाइड्रा है कि ओबेलिया का अभी बताया मैंने, उसमें ना स्टोमोडियम है ना ही सेप्टा है. स्टोमोडियम क्या है, फेरिंक्स लाइक ऑर्गन, जहाँ पे माउथ ओपन होके अंदर mouth leads into stomodium. So stomodium like structure is not there in class hydrozoa. Even in body with the gut के साथ जो है, जो मेन जो उनका ब्लस्ट क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, बॉडी होती है, उसमें अलग अलग सेप्टास होते हैं. ये सेप्टा यहाँ पे नहीं है. दूसरे क्लास आएंगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगा. मेड्यूसा
विथ डिस्टिंक्ट वेलम। अब वेलम क्या होता है ये समझ लीजिए। ये एक्चुअली जो मेड्यूसा है वो लुक लाइक अ जेलीफिश, समझ में आ रहा है। तो ये जो जैसे ये अम्ब्रेला है, तो ये अम्ब्रेला जो बन रही है, तो अम्ब्रेला का ये जो अम्ब्रेला की जो बॉर्डर है, ये अम्ब्रेला की जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं वेलम। अब वेलम ट्रू है कि फॉल्स है, उसके भी दो क्राइटेरिया है, थोड़ा डिटेल हो जाएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक्चुअली मैं ट्रू वेलम क्या है उसके भी आगे आपको बताऊंगा। ये वेलम पहले आप देख लेते हैं, जिसमें वेलम दिया है नहीं दिखा, ठीक है। मैं आपको वेलम दिखाता हूँ, देखिए ये रहा वेलम, ये है वेलम, इस लिखा है वेलम। ये ओबेलिया का मेड्यूसा है, ठीक है, ओबेलिया का मेड्यूसा है, पार्कआउट ओपन करके बताया हुआ है। ये माउथ है, माउथ ओपन्स इनटू दी, ये जो है गलेट है ना, तो ये आपका स्टोमेडियम कन्वर्ट हो गया, समझ लीजिए। नहीं सॉरी, इसमें तो हम स्टोमेडियम वर्ड यूज करते ही नहीं है, तो यहाँ माउथ ओपन टू गलेट। और ये जो है ये वेलम है, ये जो बेल मार्जिन है वो वेलम है, ठीक है। वेलम में से कई बार टेंटिकल्स जनरेट होते हैं, तो ये जो बेल मार्जिन है का जो मार्जिन है दैट इज कॉल्ड द वेलम। ओके, तो ये वेलम की बात की। अब ये वेलम के क्या लिखा है वेलम के बारे में उन्होंने, मेड्यूसा विद डिस्टिंक्ट वेलम, वेलम के लिए वर्ड है कैस्पेडोट, कैस्पेडोट वेलम, मेड्यूसा विद डिस्टिंक्ट वेलम। अगर वेलम डिस्टिंक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, दैट इज उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी, वो बाद में हम देखेंगे। एक बार होने के बाद तीनों का हम कंपेयर भी कर लेंगे। सो मेड्यूसा विद डिस्टिंक्ट वेलम, वेलम क्या है अभी इतना याद रखो तो समझ में आ जाएगा। वेलम वो जो बेल मार्जिन है वो बहुत अच्छा कॉन्स्पियस है। तो मेड्यूसा विद डिस्टिंक्ट वेलम। मीजोग्लिया नॉन सेल्युलर, व्हाट इज मीजोग्लिया, वी नो इट्स अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, बट in ectoderm and there is endoderm and ectoderm, there is no mesoderm, but mesoderm की जगह पे क्या होता है gelatinous material, that is called the mesoglea. So यहाँ पे you don't find any occasional cell also. In Anthozoa you find certain cells even in mesoglea, but they are actually migrating from the endoderm or दूसरा or any other germ layer, but they are not from the mesoderm in origin. And that's why they look externally that there are three cell layer, but still we cannot label them as a triploblastic. So here mesoglea there is no any cell and that's why mesoglea non-cellular. बहुत ही इजी है, देखो रट्टा मारने में तो बहुत इजी है, लेकिन समझना है हमें, हर मुद्दा समझना है। गोनाड्स एपिडर्मल, एपिडर्मल मतलब कि एपिडर्म जो होता है आपने हाइड्रा में बनाया था, आपने हाइड्रा में कैसे बनाया था कि ये हाइड्रा का बॉडी है मान लीजिए, तो हाइड्रा में आपने बनाया था कि गोनाड्स जो होता है इस तरह से, आपने इस तरह से थोड़ा स्वेलिंग बताया था। अब बोल रहा था रिप्रोडक्टिव टाइम आता है उस टाइम पे गोनाड में थोड़ा स्वेलिंग सा होता है, तो वो जो गोनाड आपने उसमें बताए थे एक एनिमल में टेस्टिस ओवरी बताए थे, तो उसका क्रॉस सेक्शन भी आप पढ़े हुए हो। तो उसमें क्या है, गोनाड्स डेवलप फ्रॉम द एपिडर्मल लेयर। ओके, तो गोनाड एपिडर्मल, सेक्स सेल्स सेल्स डायरेक्टली, क्योंकि एपिडर्म में हो रहा है, एंडोडर्म में नहीं हो रहा है, तो एपिडर्म कहाँ पे, बाहर की तरफ है, तो गोनाड आपके कहाँ पे है, एनिमल्स के बाहर की तरफ है, तो उसमें जो स्पर्म बनेगा, ओवा बनेगा, वो कहाँ पे जाएगा, ऑफ कोर्स बाहर जाएगा, डायरेक्टली टू द एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे क्या लिखा है, गोनाड्स आर, एक मिनट, हाँ, gonads sit directly on the outside. So gonads, epidermal, sex cells sit, sorry, not gonads, sex cells. Sex cells are liberated directly to the exterior of the body, to the environment directly. समझ में आ गया। फ्रेश वाटर मराइन हो सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, तनहा रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल, ऑल द पॉलिप्स, बहुत सेक्सुअल पॉलिप्स एंड सेक्सुअल मेडुसा प्रेजेंट, या तो हाइड्रा जैसा है जिसमें सिर्फ पॉलिप्स है, या ओबेलिया जैसा है जिनमें दोनों एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मतलब उसका काम रिप्रोडक्शन का नहीं है, खाना बनाना है, खाना कर लेना है, तो वो एसेक्सुअल पॉलिप्स एंड सेक्सुअल मेडुसा बोथ आर प्रेजेंट। से फॉर एग्जांपल ओबेलिया, पॉलिप्स विदाउट स्टोमोडियम, मतलब फैरिंक्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर इसमें होता नहीं है ना, बॉडी के अंदर कोई सेप्टा होता है। मेडुसा विद डिस्टिंक्ट वेलम, वेलम है बहुत अच्छा है, बेल मार्जिन जो है बहुत अच्छा है। मिजोग्लिया नॉन सेल्यूलर, मिजोग्लिया जैसा नॉन सेल्यूलर मतलब मिजोग्लिया में कोई सेल नहीं दिखेगा आपको। गोनाड्स हैं उसमें जो सेक्स सेल्स रिलीज होंगे डायरेक्टली बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। गोनाड एपिडर्मल ओरिजिन है, एग्जांपल है हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्काइफोजुआ, इसका ग्रीक में क्या होता है, इटली में क्या होता है वो दिया नहीं है कोटपाल ने, दूसरी बुक में भी नहीं दिया है, फिर भी अगर हम नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसका भी मीनिंग मिलेगा, बट डोंट वरी, वी जस्ट गो विद द डिटेल्स। एक्सक्लूसिवली मराइन एंड सॉलिटरी,
एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब क्या होता है? 100% मराइन ही वाटर में होते हैं, इनका कोई भी स्पीसीज अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ जो फ्रेश वाटर है। और सबके सब क्या है? अकेले रहने वाले हैं, सॉलिटरी है, लॉनली लाइफ जीते हैं, सॉलिटरी फॉर्म्स हैं, ग्रुप में नहीं रहते, ठीक है। मेड्यूसा स्टेज इज डोमिनेंट, पूरी लाइफ जो है मेनली मेड्यूसा। आपका जेलीफिश है, आपने जेलीफिश डिस्कवरी पे या बीबीसी वर्ल्ड पे देखा होगा, कैसा एकदम ट्रांसफर स्ट्रक्चर जेलीफिश ऐसा घूमता रहता है, तो एक्चुअली है क्या? वो मेड्यूसा है। सो मेड्यूसा स्टेज इज डोमिनेंट, पॉलिप स्टेज इज रिड्यूस, और यू कैन से पॉलिप स्टेज होता ही नहीं है, पॉलिप स्टेज रिड्यूस और एब्सेंट। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद गैस्ट्रिक पाउचेस एंड एंडोडर्मल गैस्ट्रिक फिलामेंट। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओरेलिया, इसका स्टडी अभी आपके लिए नया वर्ड है, यहाँ पे एक लाइन में खत्म कर दिया, अब मैं भी एक लाइन में बोल जाऊंगा। आपको क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको क्या कहता हूँ, आपको क्या करना चाहिए? जस्ट 1 सेकंड, समवन हैज सम क्वेरी, सो क्वेरी सॉल्व आई थिंक। Okay, a gastrovascular cavity with gastric pouches and endodermal gastric filament. अब आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा होमवर्क क्या करना चाहिए आपको? ओरेलिया को गूगल पे सर्च करो या कोई बुक में सर्च करो और उसका गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मतलब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने का ट्राई करो ओरेलिया का, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट विल यू फाइंड? उसमें आपको ये डायग्राम मिलेगा कि भी गैस्ट्रिक पाउचेस कैसे होते हैं, एंडोडर्मल गैस्ट्रिक फिलामेंट कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए क्या करना चाहिए? कोई भी जैसे आप जो आपका असाइनमेंट कर रहे हो उसमें भी यू विल फाइंड सर्टेन न्यू टर्मिनोलॉजी, तो कोई भी डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसा होता है, उसका यूज योर गूगल, यूज योर बुक्स, और उसमें ये मतलब देखो, ये फिगर देखो, आई हैव शोन सर्टेन फिगर्स। नो स्टोमोडियम, यहाँ पे भी वो स्टोमोडियम जैसा स्ट्रक्चर मतलब कि वो फेरिंग जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मेड्यूसा एक्रास एक्रास्पेडोट, एक्रास्पेडोट मतलब एक रेस्पेडोट, एक्रा नहीं हम क्या बोलेंगे, एक रेस्पेडोट, वो क्या था? क्रेस्पेडोट। अब मेड्यूसा यहाँ पे कैसा है? एक क्रेस्पेडोट, इसका मतलब कोई दिमाग में क्या होएगा? आपके दिमाग में क्या है? क्रेस्पेडोट मतलब मेड्यूसा डिस्टिंक्ट है। एक क्रेस्पेडोट का मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो बेल मार्जिन जो होता है जहां से टेंटिकल्स जनरेट हो रहे हैं, दैट बेल मार्जिन इज विदाउट डिस्टिंक्ट वेलम। मेड्यूसे एक्सपेडोट, एक क्रेस्पेडोट विदाउट डिस्टिंक्ट वेलम। अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको वेलम का कैसा डिस्टिंक्ट नहीं होता, वो वेलम कैसा होता है वो भी हम देखेंगे। मीजोग्लिया, मीजोग्लिया एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा फैला हुआ है। मीजोग्लिया एक्सटेंसिव, जिलेटिनस विथ फाइबर्स एंड सेल्स। तो मीजोग्लिया में भी यहाँ पे सेल्स हैं, तो क्या हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे? नहीं, हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक फिर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली वो सेल नहीं है, वो कोई दूसरे लेयर से माइग्रेट होके आए हुए वहां पे हुए सेल्स हैं, इसलिए हम उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं कह सकते। So, mesoglea extensive, gelatinous, with fibers. Fibers means mainly protein fibers. Cells. अब यहाँ पे क्या फर्क है? इसके काउंटर पार्ट जो लास्ट हमने देखा, वहां पे गोनाड्स एक्टोडर्म इन ओरिजिन थी, गोनाड्स मतलब टेस्टिस और ओरी बाहर की तरफ थी, तो उससे क्या हो रहा था? एक्सटीरियर में जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? गोनाड्स आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो एनिमल जो एंडोडर्मल है, जो दूसरा जो लेयर है, पहले क्या आएगा? एक्टोडर्म, फिर क्या आएगा? मीजोग्लिया, और अंदर की तरफ क्या आएगा? गैस्ट्रोडर्म और एंडोडर्म। एस्ट्रोडर्म के अंदर क्या आएगा? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। फिर उसकी साइड पे क्या आएगा? फिर से आपका एंडोडर्म, फिर से मीजोग्लिया, फिर से एक्टोडर्म। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मल होने के कारण क्या होगा? सेक्स सेल्स सेट्स रिलीज लिबरेटेड डायरेक्टली इनटू द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इन अदर वर्ड, सेक्स सेल्स आर रिलीज इन डाइजेस्टिव कैविटी। अब आप पूछोगे सर डाइजेस्टिव कैविटी में सेल्स चले जाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएंगे? तो दिस एनिमल हैव सर्टेन मैकेनिज्म, यहाँ से वो डाइजेस्ट नहीं होते होंगे, या उस टाइम पे जब सेक्स सेल्स रिलीज करना होगा तब बॉडी उनकी इतनी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होगी कि वहां पे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन या लिबरेशन नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल, ह्यूमन मेल यूजिंग द सेम opening for releasing the sperm as well as releasing the urine, but not at a single time. That way there is a mechanism. That might be that way there are that way sex cells are released yet they are not get digested.
देन एग्जाम्पल इज ओरेलिया, बाकी भी बहुत सारे उतने नोन एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे ओरेलिया आपके लिए जेलीफिश रखा है। थोड़ा जेलीफिश के बारे में आपका ड्यूटी है, जेलीफिश के बारे में थोड़ा पढ़िए, जेलीफिश के बाद से फोटो कलेक्ट कीजिए, एक पूरा एक पीपीटी इतना छोटा स्लाइड बना लीजिए कॉपी पेस्ट करके, एंड यू फाइंड कि उसमें सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं कि नहीं। थोड़ा जेलीफिश के बारे में विकिपीडिया पे कहीं पे पढ़िए, थोड़ा जूलॉजिकल एस्पेक्ट में पढ़िए, तो यू फाइंड ऑल द थिंग। फिर से थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या देख रहे हैं। Exclusively marine, solitary, medusa is dominant, polyps is reduced, gastrovascular cavity with gastric pouches, ये क्या है, ये आपको ढूंढना है। Gastrovascular cavity with gastric pouches and endodermal gastric filaments. No stomatium, medusa is not distinct, that is this is called acraspidot. अब एग्जाम में आए, which of the what do you mean by acraspidot, तो आपको आना चाहिए। Mesoglea extensive gelatinous with fibers and cells, gonad कहाँ पे ओपन होते हैं, अंदर की तरफ, endoderm in origin, and that's why cells are liberated, sex cells are, gametes are liberated into the gastrovascular cavity. Example Aurelia, that means jellyfish. स्काइफोजोआ खत्म किया हमने, हाइड्रोजोआ खत्म किया, अब हमने ये मैंने ये खत्म कर दिया, हमने ये खत्म कर दिया, अब हम इसको हम पढ़ लेंगे तो हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। सो लेट्स गो विद द थर्ड वन, एंथोजोआ, और अनदर नेम इज एक्टिनोजोआ। एंथो ग्रीक वर्ड है, एंथो एंड जोइस। एंथो मींस फ्लावर, जोइस मींस एनिमल, फ्लावर जैसे दिखने वाले एनिमल है, इनका मॉर्फोलॉजिकली दे लुक लाइक अ फ्लावर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फ्लावर लाइक, लुक लाइक फ्लावर। ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन, पानी में, मीठे पानी में आपको नहीं मिलेंगे, और ये दोनों टाइप के होते हैं। कुछ एनिमल होते हैं स्पीसीज जो सॉलिटरी है, अकेले रहने वाले हैं, कुछ ग्रुप में रहने वाले, कॉलोनियल। तो सॉलिटरी और कॉलोनियल। ऑल पॉलिप, अब आपको आप डिटेल में मुझे क्वेश्चन करो सर सॉलिटरी के एग्जांपल दो, कॉलोनियल के दो, मैं नहीं दूंगा, आप ढूंढो कौन कौन सॉलिटरी है उसके लिस्ट बनाओ, कौन कौन से कॉलोनियल है उसके लिस्ट बनाओ, अपना एक किताब बनाओ, अपना एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। ऑल पॉलिप्स नो मेड्यूसा, तो इनके में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन अलग मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी एनीमोन, कोटपाल की बुक, मैंने कहा था कि कोई एक आध बुक अच्छी परचेस कर लो, अगर आप जूलॉजी की फील्ड में रहने वाले हो तो वो चैप्टर निकाल लो, और सी एनीमोन कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपकी क्वेरी जिज्ञासा को, आपको आपकी जिज्ञासा जो वृत्ति है, ईगरनेस होती है, उसको आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। कि ये आपने दिखा, ये वर्ड आया, ओनली पॉलिप्स नो मेड्यूसा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर पॉलिप्स तो खाने के लिए, मेड्यूसा रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कैसे होता होगा, तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे, ढूंढो और मुझे बताओ, ठीक है। तो ये थोड़ा टास्क मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। हाउ डज सी एनीवन कैरी आउट रिप्रोडक्शन, मेट्रिडियम का आप सी एनीवन में रिप्रोडक्शन पढ़ो, आपको ये जॉब मिल जाएगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको सामने थ्रो किया है वो आपको मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। थोड़ा आपको भी एफर्ट लगाना है। माउथ लीड्स इनटू ट्यूबुलर स्टोमोडियम, अब यहाँ पे आया, अब ये स्टोमोडियम इसमें है, स्टोमोडियम नाम की कोई रचना होती है, ये भी एक आधार बना लिया इन्होंने क्लासिफिकेशन का, तो स्टोमोडियम एंथोजोआ में नहीं है, तो ये पॉइंट बन गया। हाइड्रोजोआ नो स्टोमोडियम, स्काइफोजोआ नो स्टोमोडियम, एंथोजोआ में आके यस यू फाइंड स्टोमोडियम। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सब डिवाइडेड, जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जो बीच में जैसे सिलेंट हाइड्रा में होता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव कैविटी, जो आप जिसको कहते हैं जनरली कॉमन सेंस में, वो एक्चुअली गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। तो वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए स्कीमेटिक में बता रहा हूँ कि ये हाइड्रा की बॉडी है, तो ये कोई है एनिमल, इसका एक्टोडर्म हो गया, मीजो, ये 3 लेयर हो गए बीच में मान लीजिए, और ये अब जो है अंदर का, अब ये जो बचा है वो है गैस्ट्रो, ये जो है वो है आपकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जीसी। तो ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ से इसकी दीवार में से अलग अलग 3 डायमेंशन में बना नहीं सकता, तो मैं आपको बताऊंगा। ये मान लीजिए तीनों तरफ की दीवार है, तो इस तरह की गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, तो हर जगह से, यहाँ से दीवार है, यहाँ से दीवार है, मैं इसका दूसरा डायग्राम भी, कोटपाल का भी डायग्राम आपको बताऊंगा। तो पूरा जो वॉल है, कहने का मतलब ये है कि एंटायर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सब डिवाइडेड, पार्ट, देयर आर सो मेनी पार्टीशन, ये कैविटी बना लो आप, उसमें पार्टीशन बना लो, पार्टीशन वॉल में से निकल के बाहर आ रहा है, जैसे कोई वॉल है, जगह है, ठीक है। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर भी क्या आ रहा है, देयर आर मेनी सेप्टा, mesentery, so there gastrovascular divide, there are 8 or more septa, और सेप्टा को यहाँ पे mesentery की वर्ड इसी सेप्टा के लिए यूज किया गया है,
तो ये जो सेप्टा है वो गैस्ट्रोनल कैविटी को 7 या 8 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। मैं इसके डायग्राम बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये रहा, ये कट ओपन किया है सी एनीमोन को, मैट्रीडियम को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ये फ्लावर या स्ट्रक्चर दिख रहा है एनिमल का, ठीक है। अब यहाँ पे ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, उसको इन्होंने ये देखिए सेप्टा आपको यहाँ पे मिलेंगे। जस्ट 1 सेकंड। ये रहे मेसेंट्रिक फिलामेंट, है कि नहीं। तो इस तरह से फिलामेंट की वजह से ये पूरी कैविटी है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, दूसरा एक डायग्राम बता। ये देखिए, ये पूरी मेसेंट्री में सेप्टस आपको दिख रहा है, ये टीएस है। तो इस तरह की सेप्टा पूरी मेसेंट्री में है, पूरे सेप्टा इस तरह से हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी बॉडी डिवाइड हो रही है बहुत सारे भागों में। तो इस तरह से यहाँ पे भी सेप्टास हैं, तो ये भी सेप्टा है, ठीक है। तो इस तरह सेप्टा बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सेप्टा हुए हैं और कुछ इसके आगे के 2 फॉर्म में देयर वर नो एनी सेप्टा। मीजोग्लिया स्टाउट, वहां पे क्या था, इसके आगे जिलेटिनस थी, यहाँ पे क्या है, कड़क है, स्टाउट है। एंड सेल्यूलर, तो इसमें थोड़ा कॉम्पोजिशन वाइज कुछ चेंज आता होगा, तो दैट्स व्हाई स्टाउट एंड सेल्यूलर। मिजेंट्रीज के अंदर, मिजेंट्री जो अंदर का जो भाग है एंड मिजेंट्री, तो उसके अंदर क्या है, निमेटोसिस्ट है। अब मिजेंट्री वर्ड भी बहुत बार आता है, जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा, बहुत बार ये वर्ड आपने यूज किया है, मेनली विजरा के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है, वो आपको थ्रू होना चाहिए। नहीं है तो विजुअल का डिक्शनरी उठाओ, अभी गूगल करो और देखो मिजेंट्री का सही मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो वर्टिब्रेट की मिजेंट्री, उसे थोड़ा यहाँ पे मिजेंट्री का मतलब थोड़ा अलग हो रहा है। यहाँ पे सेप्टा के टर्म में मिजेंट्री यूज किया गया है, वहां पे विजरा के कॉन्टेक्स्ट में मिजेंट्री यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो मिजेंट्रीज हैं, सेप्टा है, वहां पे यू फाइंड निमेटोसिस्ट एंड गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स। तो यहाँ पे भी गैस्ट्रोडर्मल गोनाड है, मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही चले गए। यहाँ पे भी सेक्सुअल कहाँ पे रिलीज होंगे, बॉडी के अंदर रिलीज होंगे और फिर बाहर आएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये तीनों हो गए। मेन डिफरेंस क्या रहा, वहां पे था हाइड्रा वाला था, हाइड्रोजोआ, पॉलिप्स अकेला था। दूसरे में क्या है, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा आया। तीसरे में क्या आया कि भाई तीसरा वाला है, मेन जो बेस है ना वो ये बना, मेन जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो मेन बेस बना है। द मेन आधार जो है ये क्लासिफिकर ये है कि भाई हाइड्रोजोआ है उसमें सिर्फ पॉलिप्स है, हाइड्रोजोआ है उसमें पॉलिप्स है, हाइड्रोजोआ में पॉलिप्स है। उसके बाद का जो आया उसमें मेनली मेड्यूसा मेन है, स्काइपोजोआ मेड्यूसा मेन है। एंथोजोआ में ऑल पॉलिप्स, मेड्यूसा कोई है ही नहीं, तो ये भी फिर से हाइड्रोजोआ जैसा हो गया, ठीक है। माउथ, उसमें पॉलिप्स और मेड्यूसा दोनों था, सॉरी हाइड्रोजोआ पॉलिप्स और मेड्यूसा दोनों था। उसके बाद में सेकंड में स्काइपोजोआ में क्या था, मेड्यूसा मेजर था, पॉलिप्स थोड़ा दबा हुआ था। यहाँ पे मेन जो है पॉलिप्स है, मेड्यूसा तो नाम का भी नहीं है, नो मेड्यूसा। माउथ यहाँ पे स्टोमोडियम में था, खुलता है, आगे के 2 में स्टोमोडियम जैसे कोई रचना ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बहुत सारे सब डिवीजन में डिवाइडेड ड्यू टू सेप्टा। वो सेप्टा आगे वाले में नहीं था, हाइड्रोजोआ में तो नहीं था, इसके आगे वाले में था कि नहीं वो देख लेते हैं। अच्छा, फिर वो मीजोग्लिया, सॉरी वो वेलम क्या है वो भी बता देता हूँ, मेरे पास थोड़ा ही टाइम है लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। गैस्ट्रो, तो फिर मीजोग्लिया स्टाउट एंड सेल्यूलर है, आगे वाले में जिलेटिनस था। ये अगर आपको ढंग से सीखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही पेज पे फोर से सॉरी आपका जो होता है A4 साइज का जो आता है नोटबुक, उसको इस तरह से आप कर लो और एक पेज पे ही आप लेफ्ट पे 1 2 इस तरह 3 कॉलम बना के कैरेक्टर पढ़ो तो आपको इजीली समझ में आएगा। मीजोग्लिया स्टाउट एंड सेल्यूलर, मेसेंट्री विद नेमेटोसिस एंड गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स। एग्जांपल है आपके सी एनीमोन, सी फैन, गोर्गोनिया, जिस सब एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सी फैन जो आपका पेन्नालुटा, और सारे जो कोरल्स हैं वो आपके इसमें आएंगे, एंथोजोआ में आएंगे, ठीक है। अब आपका ये 2 वर्ड आपको क्लियर कर दूं तो ये आपको मेसेंट्री आपको समझ में आ गया। अब ये है ऑरेलिया, मतलब कि फाइसेरी। यहाँ पे क्या है, कट ओपन। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये वेलेरियम। यहाँ पे देखिए जो वेलम है वो ट्रू नहीं है, अब वेलम ट्रू नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू वेलम, मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिया है वेलम के लिए, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है
margin of sub umbrella surface bearing lappets and tentacles. Lappets क्या वो में जाने की भी जरूरत नहीं है, but tentacles forms a thin and flexible flap. जो आपने कहा था बेल मार्जिन पे जो फ्लैप बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वेलेरियम और वेलम और सुडोवेलम. यहाँ पे सुडोवेलम क्यों कहते हैं, इसका रीजन यहाँ पे है. इट डिफर्स फ्रॉम ट्रू वेलम इन केस ऑफ ओरेलिया. जेलीफिश में ट्रू वेलम नहीं है, यहाँ पे कौन सा है, वेलेरियम है, सुडोवेलम है. तो इट डिफर्स फ्रॉम द ट्रू वेलम ऑफ द ओवेलिया. क्यों, क्योंकि ट्रू वेलम होता है तो उसके अंदर की तरफ, ट्रू वेलम जो होता है उसके अंदर की तरफ यू फाइंड गैस्ट्रोडर्मल कैनाल. इफ इट इज ट्रू वेलम, तो ट्रू वेलम के अंदर, कैस्पर्ड के अंदर क्या होता है, ट्रू वेलम के अंदर, वेलम के अंदर जो फोल्ड है उसके अंदर क्या होना चाहिए, गैस्ट्रोडर्मल कैनाल होती है. तो ये गैस्ट्रोडर्मल कैनाल हो, फोल्ड हो, लेकिन फोल्ड के अंदर कैनाल नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सूडोवेलम. तो फोल्ड और फोल्ड के अंदर गैस्ट्रोडर्मल कैनाल है, इन दैट केस इट इज लेबल्ड एज द ट्रू वेलम. ओके, तो ओवेलिया में यू फाइंड ट्रू वेलम और उसमें आपको फाइंड सूडोवेलम. Such a medusa with pseudovelum in Aurelia is called the Acraspedot medusa. अगर medusa वेलम नहीं है या झूठा है, सूडो है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, एक क्रेस्पेडोट मेड्यूसा. एक क्रेस्पेडोट मेड्यूसा. अगर मेड्यूसा के अंदर ट्रू वेलम मौजूद है, इफ ट्रू वेलम इज प्रेजेंट, in that case we call क्रेस्पेडोट मेड्यूसा. अब आपको एक क्रेस्पेडोट वर्ड समझाने के लिए मैंने कहाँ से फोटो लिए, सिर्फ आपको डायग्राम समझाने के लिए कि आपके वो रट्टा मारने का ना हो जाए. यही अप्रोच शायद हर पॉइंट के लिए मैं आपके डिटेल में ना जा सकूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी है खुद से ढूंढना. यहाँ पे मैंने बताया ये ट्रू वेलम का डायग्राम. ट्रू वेलम, ये देखिए कैनाल आपको दिख रही है, तो ये ठीक है. फिर ये रहा वेलम का डायग्राम, ओवेलिया का वेलम, अंदर गैस्ट्रोडर्मल कैनाल है. यहाँ पे इस तरह की गैस्ट्रोडर्मल कैनाल नहीं है वेलेरियम में. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू और सूडो का भी आ गया, ये मेसेंट्रिक के सेप्टा भी बता दिए. तो यहाँ पे ये मेरा टॉपिक ओवर होता है. ओके, एनी टाइम वी विल लीव द मीटिंग.